Hello students, welcome again and thank you very much for joining me in today's online class under the program समय 10 से 12 वाला हर घर बनेगा पाठशाला. Students, in today's program I am going to talk about note making, and yes, I termed it as note making part 2. As you know, I questioned actually the other part I discussed in my previous video. I questioned the part as note making part 1, so that's why I am terming it as note making part 2. Students, first of all I would like to extend my humble apology, and I'm extremely sorry for the fact that that video of note making part 1 was deleted from my YouTube channel by none other than myself. Actually that was done by a mistake, by a blunder. So I'm really sorry for that inconvenient caused to you because of that blunder. So however, once again I have uploaded that video on YouTube with a new link. So I have given the link here under this video's description box, so please click here and watch that video again. And I did that blunder in spite of the fact that it was being viewed by more than 200 people within a period of 3 hours. So I'm extremely sorry for that. So I hope you will go and click on the link and would watch the video note making part 1, because note making part 2 will be incomplete without note making part 1. So I'm again sorry for that. Now come to today's topic, students. So the topic is note making part 2. As you are aware, we discussed about what is note making, introduction of note making, definition of note making, and features of note making in our previous video. So I hope all you remember what is note making. Definition is: note making is a process through which a given content is written or oral, shortened in a way that it can be extended to its original size whenever needed, so without compromising its essence. I hope all of you remember the definitions. So that's quite necessary to move on in this part. Okay, so in view of that definition, we had some features of note making. I hope all you remember also the features of note making. We had 6 features of note making. I'm just recalling quickly all those 6 features: brevity, specific format, maximum use of words and phrases, overlooking of grammar and punctuation, abbreviations, and title. Yes, these 6 points were the features of note making. So today I promised you in that video, in my second part, we will discuss about how to make notes. So yes, we are here to do points to be remembered while making notes, or how to make notes, or more precisely I would say process of note making. As I said in the definition, that note making actually is a process. So let us follow what process is note making in fact. Students, today again we will divide this class into 2 segments. Firstly, we will discuss points to be remembered while preparing notes, or process of note making. Okay, or in second half we will try to have an exercise of note making. Okay, so let's come process of note making. Okay, what is a process? Actually process होता क्या है? प्रक्रिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों. आपको आइडिया है? Process is actually sequence of events. Okay, sequence of exercises. कुछ exercises, कुछ events, कुछ काम हमें करने हैं, किस क्रम में वो करना है, किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में वो करना है, दैट्स कॉल्ड अ प्रोसेस. सो ये आल्सो नोट मेकिंग इज अ प्रोसेस. एक प्रक्रिया है, कुछ हमें काम करने हैं और किस किस ऑर्डर में वो काम करने हैं, वही नोट मेकिंग है. ओके, वही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे. सो नोट मेकिंग में जो फर्स्ट प्रोसेस, पहला काम हम करते हैं, क्या करते हैं? सपोज वी आर सिटिंग इन एग्जामिनेशंस, वी आर टेकिंग एग्जामिनेशन और समथिंग एल्स. ओके, वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिपेयर नोट्स. ओके, सो एक अनसीन पैसेज हमारे पास आता है, एंड जस्ट कीप इन माइंड एज पर नॉर्म्स दिस पैसेज मस्ट बी अनसीन पैसेज. बाई चांस आपको पहले कभी देखा हुआ पैसेज एग्जामिनेशन में आ जाता है या आप उसके नोट्स बनाने पड़ जाते हैं, वो दैट विल बी प्योरली बाई चांस. ओके, अदरवाइज इट इज सपोज दैट पैसेज मस्ट बी अनसीन. सो एक अनसीन पैसेज आपके सामने है. सो फर्स्ट थिंग क्या करते हो आप? क्या करोगे? जस्ट सिंपली जस्ट गो थ्रू द पैसेज. बट दैट मैटर्स हाउ डू यू गो थ्रू दैट पैसेज. आप उस पैसेज को पढ़ते कैसे? ऑब्वियसली पहला काम तो वही करेगा ना, आप पढ़ेंगे. एंड वी कॉल दैट रीडिंग इज फर्स्ट रीडिंग. ओके, फर्स्ट रीडिंग पहली बार पढ़ना सिंपली. ओके, फर्स्ट रीडिंग, इन फर्स्ट रीडिंग यू आर सपोज टू जस्ट गो थ्रू वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस बाय सेंटेंस. ओके, डोंट ट्राई टू कम टू जस्ट कंक्लूजन with the help of one para or second para or third para. Okay, or in the middle of the passage. Okay, just try to enjoy the reading. Okay,
forget that you are going to just make out of something of the passage. Okay, just try to enjoy that reading. What should be objective? Your objective should be, while making first reading, is to just grasp the overall subject, to just try to find out the subject that this passage deals with. ये डील किससे कर रहा है, बस उतना अगर आप बेटा गेन कर लेते हो, अगर उतना आप ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर लेते हो, दैट इज अचीवमेंट ऑफ ये जो फर्स्ट लेग ऑफ योर प्रोसेस, जो आपके प्रोसेस का पहला स्टेज है, चरण है, उसका वो आपने पूरा कर लिया। क्या? फर्स्ट हैंड आपको ये देखना है, फर्स्ट हैंड नॉलेज करना उसको। जस्ट आई एम सेइंग, अपने आप को स्ट्रेस मत कीजिए, आप कोशिश मत कीजिए कि ये क्या होगा, अभी तो नोट्स बनाना आप शुरू कर दिए, फॉरगेट अबाउट नोट मेकिंग। ओके, जस्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जस्ट रीड इट केयरफुली, रीड इट कामली, रीड इट सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड। ओके, एंजॉय कीजिए आप उस पढ़ने को, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड। देन आउटकम क्या निकलेगा? दैट विल बी ब्रॉडर आइडिया। जो आप उसका आउटकम निकलता है, जो आप निष्कर्ष मत निकालिए, आप ये समझेंगे कि मोटे मोटे तौर पर ब्रॉडली दिस पैसेज डील्स विद that and that topic. Does it deal with your polity? Does it deal with your history? Does it deal with your science? Does it deal with your literature, language, whatever may be topic there? Okay, subject there. Okay. So just try to find out that broader subject. Okay, that is the objective of first reading. Let us see what does it say. First reading. Go through the passage carefully, line by line and para by para. Simply try to have a first-hand introduction of the topic. Only objective should be to comprehend a broader subjective idea of the passage. Okay, is it clear? Okay, हमने देखा क्या ब्रॉडर, आप देख रहे हैं ब्रॉडर क्या होगा। ब्रॉडर सेंस से आपको वो आइडिया लेना, आपको वो सब्जेक्ट का आइडिया करना है कि ये पैसेज डील किसके साथ कर रहा है, उसके ज्यादा माइन्यूट आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा? सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे, आप मूव ऑन करेंगे, देन देयर विल बी सेकंड पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट विल बी सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग क्या होगा? सिंपली टू रीड द पैसेज फॉर सेकंड टाइम, सिंपली एंड फर्स्ट टाइम, बट नॉट सिमिलर वे। ओके, फर्स्ट टाइम that passage was unseen to you, but while during second reading passage was somewhat known to you. वो उतना अनसीन नहीं था जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे थे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, डिफरेंस है ना दोनों में। फर्स्ट रीडिंग दैट वाज प्योरली यू डोंट नो व्हाट डज दिस पैसेज डील विद। ओके, हियर इन सेकंड रीडिंग आपको ब्रॉडर, अब क्या हुआ, आपने ब्रॉडर एक आइडिया ले लिया है, आपको अंदाजा लग गया कि इस टॉपिक से ये पैसेज डील करता है, ये इसका मेन सब्जेक्ट मैटर है। अब उस सब्जेक्ट को आप दिमाग में रखे, ओके, वो आइडिया आपके यहाँ पे, उस आइडिया के हिसाब से फिर आप उस पैसेज को, आपने नहीं तो फाइंड आउट कर लिया कि ये पैसेज जो ये डील पोलाइटी से करता है, हिस्ट्री से करता है, आपके साइंस से करता है, फिजिक्स से करता है, या कंप्यूटर से करता है, किस टॉपिक से, रेलिवेंट से करता है, कंटेम्प्रेरी से करता है, कोई करंट अफेयर्स के टॉपिक से करता है, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक से करता है, कोई कहानी है क्या, वो आपने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में आपने स्टूडेंट्स क्या किया, आपने उस टॉपिक को और ज्यादा फिर माइन्यूट, अपना दायरे को और इसको कहते हैं ना, उसको कंपैक्ट किया, सीमित किया, और उसके बाद फिर आपने वो स्टार्ट किया उसको पढ़ना और उसको ग्रैस्प करना और डीप उसका अर्थ। लेट अस सी सेकंड रीडिंग। आफ्टर हैविंग अ फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया सब्जेक्ट dealt with in the passage, have another reading, but this time keep in mind the observation of your first reading. Try to extract the more specific or subject oriented understanding. Yes, subject specific and idea oriented access. अब जो रीडिंग आपकी होगी वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ जानी चाहिए। अब जो फर्स्ट आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया था, सेकंड पे स्टूडेंट्स यू आर ट्राइंग टू जस्ट उस सब्जेक्ट पे आप और ज्यादा डेप्थ में फिर उसका आप डायसेक्शन करने की कोशिश आप उसको करेंगे कि अलग अलग हिस्सों में ये फर्स्ट पैरा, अच्छा विषय आपका वही है, फर्स्ट पैरा ये बात कर रहा है, सेकंड पैरा ये बात कर रहा है, थर्ड पैरा ये बात कर रहा है, क्या आप उस चीज को करने की कोशिश करेंगे। ओके, देन दैट इज योर सेकंड रीडिंग। देन कम्स योर थर्ड पॉइंट एंड इट्स नॉट थर्ड रीडिंग। ओके, थर्ड पॉइंट कम्स अंडरलाइनिंग। व्हाट अंडरलाइन? अंडरलाइनिंग क्या? अंडरलाइनिंग द मेन पॉइंट्स। अंडरलाइन आप समझ गए बच्चों? अंडरलाइन आपको क्या करना है? अंडरलाइन आपको करना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझते हो, जो आइडियाज आपको लगता है, जो उस टॉपिक, फिर आपने सब टॉपिक ढूंढ लिया सेकंड रीडिंग में, फिर आपको लगा कि उसके आसपास के ये पॉइंट्स हो सकते हैं, आप उसको अंडरलाइन आप करते जाएंगे। लेट अस सी,
after or during you have a proper second reading, underline the important sentences and clauses you think are most important or reflect the true message or spirit of the passage. Choose most effective words or phrases as headings and try to arrange them in order. Okay, is it clear? जो आपको लगेगा उसको हेडिंग बनाया जा सकता है, उसे अरेंज कीजिए आप उस तरीके से, उसे ऑर्डर में, ऑर्डर ऑब्वियसली जनरली वो ऑर्डर वही होता है जो सीक्वेंस आपके पैराग्राफ्स का होता है, आप उसको अंडरलाइन करते हो वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर बनता जाएगा. ओके, अंडरलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरलाइन मीन्स दैट इज एक्चुअली पिकिंग अप. अंडरलाइन दैट इज you're categorizing those what is important and what is less important, what is more important. Okay, वो जो categorization है that is actually बस यही है. अंडरलाइनिंग अगर आपकी सही है उसी को तो बाद में आपको फॉर्मेट में रखना है, इफ यू नो द फॉर्मेट. ओके, सो अंडरलाइन इज स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट पॉइंट इज योर contextual meaning. Contextual meaning, let me write down. What is contextual meaning? Students, contextual meaning संदर्भिक अर्थ जिसे आप हिंदी में कहते हैं, किस context में उसका words. I said in my last video also there may be some words which you think are difficult to understand, to comprehend for you. Okay, कुछ words आपको लग सकता है पूरा पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें, पूरे पैसेज में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, लेकिन 2-3-4 वर्ड्स ऐसे थे जो आपको समझ नहीं आए. आप क्या करते हो फिर? आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते. क्या पता वो उसका निचोड़ हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो, आप उसका एग्जैक्टली अगर मीनिंग नहीं जानते स्टूडेंट्स, तो आप क्या करते हैं, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट किस कंटेक्स्ट में वो यूज किया गया, संदर्भ क्या है उसका, क्या उसका प्रीसीडिंग सेंटेंस है, क्या उसका सक्सीडिंग सेंटेंस है, उससे पहले क्या बात की जा रही थी, आफ्टर क्या बात की जा रही थी. तो उससे आप क्या करते हो, उसका एक आउटर सा मीनिंग, मोटा मोटा सा एक आप उसका एक अर्थ निकालने की कोशिश करते हो उस कंटेक्स्ट में कि जिस कंटेक्स्ट में उसको यूज किया गया. सो दैट इज कॉल्ड कंटेक्चुअल मीनिंग. ओके, डिराइव करते हैं आप, निकालते हैं उसका, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कल कहा था पूरा पैसेज शायद आपको समझ नहीं भी आता, कई बार ये कुछ वर्ड्स आपको समझ नहीं भी आते क्योंकि एक बैलेंस सा पैसेज होता है. ओके, सो contextual passage. Let us see what is contextual meaning. There may be some words in passages you think are unknown to you and you don't know the exact meaning. Try to find out their contextual meaning, that is, the context in which they are used. Concentrate on the words, phrases, sentences preceding and succeeding these words. Yes, then we come to our next point, our fifth point. Yes, formatting. So this is what I said in my last video. फॉर्मेटिंग जो है वो बहुत, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए. फॉर्मेट क्या है, बस उन्हीं को आधा काम तो आपका पहले हो गया स्टूडेंट्स. जब आपने अंडरलाइन कर लिया चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, उसको अब फॉर्मेट के रूप में आपको प्लेस करना है, बस दैट्स इट. आपको करना क्या है, आप सबसे पहले हेडिंग्स लिखते हो. ओके, देन यू गो टू सब हेडिंग्स. ओके, हेडिंग मीन्स मेन पॉइंट. हर एक जो पैसेज है, most of the time that passage is divided into different paragraphs. Okay, और different paragraphs जो है वो डील करते हैं अलग अलग सब हेडिंग से, सब टॉपिक से. ओके, सो आप उसको कहते हैं हेडिंग्स. एक ओवरऑल पैसेज होगा वो तो टाइटल में आ जाएगा, जो मेन पॉइंट्स आप उसके, उसे आप हेडिंग्स कहते हैं. और हेडिंग उसकी स्पोर्टिंग में क्या फिर चीज़ें हैं, थोड़ा और ज़्यादा जो उसको इससे कम थोड़ा हाईलाइट करती है चीज़ों को, या थोड़ा कम रिप्रेजेंट करती है चीज़ों को, उन्हें हम सब हेडिंग करते हैं. तो इसकी जो इंडेंट समझते हो बच्चों आप, इंडेंट मार्जिन, हाशिया. ओके, जो इंडेंट होता है वो बहुत मैटर करता है. ऑल हेडिंग्स मस्ट बी इन वन इंडेंट व्हाइल सब हेडिंग्स शुड बी अनदर. ये आप हेडिंग इसके नीचे बच्चों, आप सब हेडिंग यहां नहीं लिखेंगे आप. तो आपको लिखने का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो ऐसा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा. ओके, हेडिंग अगर इस सीट में आएगा, सब हेडिंग इधर आएगा. ओके, और अगला हेडिंग फिर यहां पे आएगा, फिर उसके नेक्स्ट हेडिंग फिर नीचे आएगा. सपोज इस हेडिंग आपको लग रहा है कि दिस हेडिंग इसका थोड़ा कंटेस्ट ज्यादा है, इसके सब हेडिंग ज्यादा बन सकते हैं, तो नेक्स्ट जो इसका सब हेडिंग होगा वो इसी सीध में आएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे सब हेडिंग्स इधर जाएंगे. ओके, हेडिंग्स सारे इधर आएंगे. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, एंड अगेन फिर इसके बाद हम अगले हेडिंग पे जब आएंगे तो यहां से शुरू करेंगे बच्चों, और सब हेडिंग पे जब हम जाएंगे, चाहे इसका सब हेडिंग होगा, फिर हम वहां से सीक्वेंस करेंगे, फिर हम वहां से लिखना शुरू करेंगे. ओके, जस्ट और उस तरीके शेप क्या बनती है बच्चों, लाइक ऐसे सब हेडिंग, यहां पे हमारे हेडिंग्स आएंगे, यहां पे हमारे सब हेडिंग आएंगे. ठीक है, अगेन हियर हेडिंग आएगा,
यहाँ सब हेडिंग आता है. एंड सपोज यू आर हैविंग मोर देन वन सब हेडिंग, यू कैन राइट हियर सब हेडिंग होगा. ये सब हेडिंग, इसका आपको लग रहा है मोर देन वन है, सब हेडिंग होगा. एंड इफ देयर इज चांस स्टूडेंट्स, जस्ट कीप इन माइंड, जब आपको लगता है कि सब हेडिंग के भी सब हेडिंग्स हो सकते हैं और पार्ट्स में हो सकते हैं, डेफिनेटली दैट विल टेक अनदर डिफरेंट इंडेंट. फिर सब हेडिंग यहां से शुरू होगा, इस तरफ जाएगा. ओके, हेडिंग्स आपके इसी सीध में सारे आएंगे, सब हेडिंग्स आपके सीध में आएंगे, और सब हेडिंग अगर हैं तो बच्चों इस सीध में आएंगे. ये बहुत जरूरी है फॉर्मेट. आपको करना क्या फॉर्मेटिंग में, इसका जो सीक्वेंस है, अगर इसको आपने कैपिटल ए दिया है, फिर कैपिटल बी आप इसको देंगे, फिर कैपिटल सी आप नेक्स्ट हेडिंग को देंगे. ये जो सीक्वेंस आपकी है, नंबरिंग आपकी है, आप हेडिंग्स का सब हेडिंग्स एक जैसे, सब हेडिंग सब एक जैसे, और सब हेडिंग अगर है तो सब एक जैसे. प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ मैं समझा पा रहा हूँ आपसे. जैसे एक इसको आप अलग सीक्वेंस दीजिए, इसको आप सिंपल स्मॉल ए दे दीजिए, आप इसको 1 दे दीजिए, आप इसको दूसरा 1 दे दीजिए, ये 2 3. ओके, देन if you are giving it, you can change this sequence also. You are giving 1 Roman 1, okay, Roman 2 next heading, okay, Roman 3 next heading, okay, if you are giving now. But here should be, or actually what I intend to say is all sub headings should be given the same sequence. All the headings must be given same sequence. That is, I intend to say nothing else. Okay, so ये आपको यहाँ पे 1 2 3 4 अगर आप कर रहे हो तो फिर नेचुरली ये खत्म हो जाएगा बच्चों. उसके बाद आप यहाँ के बाद 2 के बाद फिर 2 1 आ जाएगा, फिर इसका 1 2 3 4 आप वैसे करेंगे नीचे. ओके, एंड अनदर एक और पैटर्न जो आजकल बहुत पॉपुलर होता है, जो बहुत उसको भी फॉलो किया जा सकता है. इफ यू आर गिविंग हेडिंग्स सीक्वेंस नंबर इन नंबर फॉर्म, 1 ये आपका एक हेडिंग हो गया, सपोज यू आर डूइंग सो. 2 आपका दूसरा हेडिंग हो गया. Okay, 3 this is also your heading. So सब heading को 1.1 1.2 1.3 फिर again 2.1 2.2 2.3. आपको अगर लगता है आप इस सीक्वेंस में भी दे सकते हो 1.1 1.2 1.2, जैसे हमारे लेसन या चैप्टर्स का सीक्वेंस रहता है. बट जस्ट रिमेंबर, डोंट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड डोंट कंफ्यूज योर सीक्वेंस ऑफ सब हेडिंग्स टू हेडिंग्स एंड हेडिंग्स टू सब हेडिंग्स. ओके, सो उसको थोड़ा आप क्लियर कर लें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मेटिंग. नाउ लेट अस सी फॉर्मेटिंग. Now put your main ideas or points on a specific format. Write them in bold and further write the subheadings of supporting words, phrases. Avoid to write full sentences. Usually if there are more than one paragraphs, the number of headings will be as many as paragraphs. Numbering of all the headings should be of similar kind and that of all the subheadings of other similarity. Different indent should be followed for headings, subheadings and subheadings if there is any, but a single indent to each category. Okay students, so it's clear. जो हमने इतना टाइम लगा के डिस्कस किया, आपको अलग अलग हेडिंग देना है और एक तो उनका इंडेंट देना है. उनको एक सीध में नहीं लिखना, सिंपल मैं निचोड़ बता रहा हूँ फॉर्मेटिंग का. एक तो आप एक सीध में नहीं लिखेंगे, हेडिंग सारे एक जगह एक सीध में लिखेंगे, सब हेडिंग एक सीध में और सब हेडिंग उसी की सीध में. एक चीज़ इंडेंट आपकी गैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और दूसरा जब आप उनको सीक्वेंस देंगे वो अलग अलग देंगे. पूरे सेंटेंसेस आपको नहीं लिखने हैं. कैसे लिखने हैं आपको? हाफ सेंटेंसेस, वो हमने फीचर्स में बच्चों बात की है. नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पॉइंट. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज abbreviations. Okay, abbreviations. What is abbreviations? Abbreviations कल भी हमने बात की थी, संक्षिप्त रूप, छोटा, इसको छोटा करना, कंपैक्ट करना, ताकि तो उसमें स्टूडेंट्स वी डिस्कस्ड आल्सो इन आवर प्रीवियस वीडियो. यू कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ एब्रिविएशंस. एक तो जो यूनिवर्सल होती हैं, ओके, GOVT गवर्नमेंट है तो हम उसको गवर्नमेंट मान लेते हैं, जैसे जिस तरीके से हमने बात की कल भी, हम प्रीवियस वीडियो में भी हम चर्चा कर रहे थे. और एक आप सेल्फ मेड भी एब्रिविएशंस बना सकते हैं जहां पे आपको लगता है रेपिटेशन हो रही है. लेट अस सी. Use abbreviations for those words which are large and are used more than once or twice in order to avoid the repetition of same word and to save the time and space. Abbreviations are used
you can use universal abbreviations that is accepted and recognized by all, as well as self-made abbreviations. At the end of the notes, give a key to the abbreviations used and decode all the used abbreviations. Yes, एक पॉइंट और बच्चों, जो आप एब्रीविएशन जो भी आप यूज करेंगे वो एट द एंड, जब हम एग्जांपल करेंगे हम देखेंगे लास्ट में जाके, एंड में जाके हम उसे एक की देंगे कि हाँ इस वर्ड के लिए हमने ये एब्रीविएशन लिखी है, इस वर्ड के लिए हमने ये एब्रीविएशन लिखी है. ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइटल. ओके, टाइटल फ्रेंड्स, आई डिस्कस्ड इन माय लास्ट वीडियो आल्सो, टाइटल बहुत जरूरी है. टाइटल शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ योर नोट मेकिंग. ओके, टाइटल शुड बी रिफ्लेक्शन एक्चुअली ऑफ योर नोट मेकिंग. सो टाइटल, दो तरीके होते हैं टाइटल देने के. बहुत मैं आपको एक पते की बात बता रहा हूँ. आप या तो टॉप पर भी टाइटल दे सकते हैं, एट द टॉप ऑफ द योर नोट्स, एट द बॉटम ऑफ योर नोट्स, दोनों जगह. लेकिन एक बात का बच्चों आप ध्यान रखेंगे, अगर आप टॉप पर भी दे रहे हैं, सबसे ऊपर देना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप पहले देना चाहेंगे. ऐसा मत कीजिए. यू लीव स्पेस द ब्लैंक एंड देन कम टू नोट मेकिंग. जब नोट मेकिंग आपका पूरा हो जाएगा, प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में आप उसको ऊपर नहीं लिखिए, बेशक आपने जगह जो छोड़ी है वहां पे लिखिए बाद में, क्योंकि क्या पता पहले आप जल्दी में कंक्लूजन पे पहुंच गए हो, ये टाइटल हो सकता है, और बाद में नोट्स बनाते बनाते आपका आइडिया. इसलिए अगर जगह छोड़ दें, अगर आपको टॉप पर लिखना है बच्चों, आप बाद में लिख लें. यदि आपको बॉटम पर लिखना है तो ऑब्वियसली तब तो आप बाद में ही लिखेंगे. बट टाइटल शुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ योर. देन कम्स अ की टू एब्रीविएशन. तो स्टूडेंट्स, जो आपने की एब्रीविएशन यूज किए, शॉर्ट फॉर्म जो भी बच्चों आपने यूज की होगी, उसकी आपको नीचे एक की देनी होती है. एंड में आपको नीचे जाके की देनी होती है, उसका क्लू देना होता है कि किस वर्ड, किसके लिए आपने छोटा वर्ड यूज किया था और किसके लिए आपने ये, उसका फुल फॉर्म एक्चुअली व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म, एंड राइट ऑल इन द बॉक्स. सपोज यू रोट कॉन्स्टिट्यूशन, CONST for constitution, and then you write CONST and then full form कॉन्स्टिट्यूशन. सिमिलरली जो आपने शॉर्ट फॉर्म यूज किया वो आप इस तरीके से बच्चों इस साइड पे लिखेंगे, और जिसका फुल फॉर्म है आपको यहाँ पे लिखेंगे, ये आप पूरा बॉक्स में लिखेंगे, और इसको आप लिख देते हैं की टू एब्रीविएशन. ओके, नाउ दैट्स सो लेट अस हैव वंस अगेन स्टेप बाय स्टेप कंक्लूजन. लेट अस सी क्या क्या प्रोसेस है जो इसको हमने फॉलो करना है वो देखना बच्चों. तो आइए स्टेप बाय स्टेप कंक्लूजन्स. सबसे पहले आपको करना है, यू आर सपोज टू डू फर्स्ट रीडिंग. ओके, देन यू गो टू सेकंड पॉइंट, योर सेकंड रीडिंग, देन अंडरलाइनिंग. यू कैन मिक्स अप बोथ द पॉइंट्स. अगर आप चाह रहे हैं तो तीसरे पॉइंट को आप दूसरे के साथ इकट्ठा भी कर सकते हैं बच्चों. देन कम्स अ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें. फॉर्मेटिंग में थोड़ा टाइम लगता है. देन एब्रीविएशंस एंड टाइटल, एंड एट द एंड की टू एब्रीविएशंस. ओके, सो दिस वाज की टू abbreviation. Okay students, so this was your process of note making. Now let us have an example of note making. Okay, welcome in this section students. I have a question paper actually. If you can see, this is question of this year's plus 2 examination, section A. English का जो अभी बच्चों एग्जाम हुआ, सेक्शन A सीरीज का क्वेश्चन पेपर है. सो मैं इसको कोशिश करूंगा ये डिस्प्ले हो जाए आपके स्क्रीन पे भी, आप इसे देख पा रहे हो. आप इसे पढ़ने की कोशिश करें, और फिर हम कैसे किस प्रोसेस में हमको नोट्स बनाने हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू जस्ट स्टूडेंट्स हैविंग फर्स्ट रीडिंग, जिसको आप कहेंगे. आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आराम से. उम्मीद करता हूँ पढ़ाओ, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने हालांकि पढ़ा है ये. ओके, how you can best improve your English depends on where you live, and particularly on whether or not you live in an English speaking community. If you hear English spoken every day and mix freely with English speaking people, that is on the whole an advantage. On the other hand, it is often confusing to have the whole language poured over you at once. Ideally, a step-by-step course should accompany or lead up to this experience. It will also help a great deal if you can easily get sort of English books in which you are interested. To read a lot is essential. Read as many books in English as you can, not as duty but for pleasure. It is extensive and not intensive reading that normally helps you to get interested in extra reading and thereby improves your English. अब अंडरलाइन में आप देख सकते हो बच्चों कि क्या करता है वो. फर्स्ट पैरा क्या कह रहा है, हाउ कैन बेस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश डिपेंड्स ऑन वेयर यू लिव एंड पार्टिकुलरली वेदर और नॉट यू लिव इन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी. तो आपका जो रहना है, लिविंग जो है आपकी, वो बहुत मैटर करती है. ओके, लिविंग मतलब आप किस सोसाइटी में रहते हैं,
इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में रहते या नहीं. सो दैट ब्रिंग्स अस टू आवर फर्स्ट हेडिंग. तो आइए देखते हैं. तो फ्रेंड्स मुझे लगा ये फर्स्ट हेडिंग होना चाहिए हमारा ए. क्या मैंने इसको कैपिटल ए का इसको सीक्वेंस दिया. क्या मैटर करेगा. ओके, लिविंग ओके. सो फर्स्ट हेडिंग वुड बी लिविंग सराउंडिंग मैटर. सराउंडिंग्स जो है हमारी जहां हम रहते हैं वहां पे वो मैटर करती है. ठीक है, उसका असर रहता है. अब किस तरीके रहता है वो नेक्स्ट बच्चा आप देखेंगे. पैसेज आप देखें. इफ यू हियर इंग्लिश स्पोकन एवरी डे एंड मिक्स फ्रीली विद इंग्लिश स्पीकिंग पीपल दैट इज ऑन द होल एन एडवांटेज. ओके, सो क्या है इसका फर्स्ट हाफ. ये हेडिंग है बच्चों. ये सब हेडिंग क्या होगा. मैंने इसको स्मॉल ए में इसका सीक्वेंस दिया. लिविंग इन, मैंने इंग्लिश की जगह ईएनजी लिखा. इसको एब्रिविएशन कहते हैं. इंग्लिश कम्युनिटी को मैंने कॉम करके लिखा. इज एडवांटेज एडीवीटी करके लिखा. ठीक है, ये फर्स्ट मेरा सब हेडिंग हो गया. नाउ कम ऑन फर्दर. If you hear English spoken every day and mix freely, okay. On the other hand, it is often confusing to have the whole language poured over you at once. ठीक है, अदरवाइज अगर बच्चों आप नहीं रहते हैं तो क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी. तो आप उसका बी में लिखते हैं क्या. It will also help a great deal if you can easily get sort of English books in which you are interested. देखिए, yes, एक अगला जो बेटा सब पॉइंट्स वो बता रहा है, ये सब पॉइंट वो बता रहा है, सब हेडिंग जिसका हम यूज कर सकते हैं वो ये कि ये भी बहुत इजी बेनिफिशियल हो सकता है कि अगर आपको जो बुक्स आप पढ़ना चाह रहे हो वो आपको इजीली मिल सकती है. एक्सेस उनका इजीली है. तो ये भी एक पॉइंट बच्चों हो सकता है. इजी एक्सेस. इंटरेस्टिंग बुक्स दैट विल बी सब हेडिंग. ओके, और नाउ हमें लगता है फर्स्ट पैरा बच्चों, मुझे लगता है ये फर्स्ट पैरा पूरा हो गया. अब हम सेकंड की तरफ चलेंगे. टू रीड अलॉट इज एसेंशियल. रीड एज मेनी बुक्स इन इंग्लिश एज यू कैन, नॉट एज ड्यूटी बट एज अ प्लेजर. इट इज एक्सटेंसिव एंड नॉट इंटेंसिव रीडिंग दैट नॉर्मली हेल्प्स यू टू गेट इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग एंड देयरबाय इंप्रूव योर इंग्लिश. नाउ बच्चों ये हो गया. तो हमारा सेकंड पॉइंट आएगा कि वो क्या कह रहा है. टू रीड अलॉट एसेंशियल, पढ़ना क्या है. एक्सटेंसिव इंटेंसिव वो मैटर करेगा बहुत. बी आ गया. ओके, व्हाट टू रीड. वो मैटर करता है. ओके बच्चों, व्हाट टू रीड किसकी तरफ पड़ेगा. बुक्स. वो कह रहा है बुक्स अदर देन, जो बुक्स अदर देन आपकी एग्जामिनेशन बुक्स है उसके अलावा जब आप पढ़ते हैं क्या पढ़ना बच्चों. बुक्स अदर देन एग्जामिनेशन. तो आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हो. ए आपने इसको हेडिंग दिया. बुक्स अदर देन एग्जाम्स को मैंने डॉट कर दिया. ओके बच्चों, इस तरीके से आप पढ़ेंगे. हेडिंग जो मैं कह रहा था आपको, हेडिंग ए हमने इसको एक सीक्वेंस दिया बच्चों. इसको इंडेंट हमने ये दिया, आप देख पा रहे हैं. ए बी करके इस सीध में दिया. सब हेडिंग हमने इस सीध में दिए बच्चों, इस सीध में दिए. और इनको सीक्वेंस जो है ए बी, फिर इसका मैं ए लिख रहा हूं. अब अगला इसका बी लिखूंगा. ओके, इस तरीके से बच्चों अगले दो स्टेंजेस आप पूरा करने की कोशिश करेंगे. और जो उम्मीद करता हूं आप प्रैक्टिस करेंगे. और कंक्लूजन पे जो आपका फॉर्मेट बन के निकलेगा वो कुछ इस तरह का होगा. वो मैं आपके सामने रिफ्लेक्ट कर सकता हूं. जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से बच्चों इस तरीके का हो सकता है. बुक्स अदर देन एग्जामिनेशन, ऑल्सो बुक्स दैट गिव्स यू प्लेसेस व्हाट टू रीड. और उसके बाद बच्चों वो बात करता है एक्सटेंसिव रीडिंग की. हेल्प्स टू गिव कमांड ओवर लैंग्वेज. से ये फायदा होता है जब हम एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं. वन बिकम फैमिलियर विद द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पैटर्न, डेवलप अ कंटेक्चुअल एंड क्लोज रिलेशंस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन फॉर्म. ओके, और जो डी वो हेडिंग बता रहा है उनका क्लोज अपने आप में रिलेशन है. एंड नो मच डिफरेंस, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सेम पैटर्न और वोकेबुलरी है. टू एस्पेक्ट्स ऑफ वन लैंग्वेज. एक्चुअली रिटन जो कन्फ्यूजन है रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश में जो कोई कौन सी बेटर है या क्या हो सकती है या क्या बेटर वे हो सकता है, वो सारा वो कह रहा है यूजलेस है, क्योंकि दोनों टू एस्पेक्ट्स ऑफ वन लैंग्वेज हैं. ओके, और उसके नीचे बच्चों आप देख पा रहे हैं ये की टू एब्रीविएशन, जैसा मैं आपको बता रहा था. जो मैंने ऊपर अपना एब्रीविएशन यूज किया है. ईएनजी को मैंने इंग्लिश लिख दिया, CUMT को कम्युनिटी लिख दिया. इस तरीके से आप देंगे की टू एब्रीविएशंस. और आप ऊपर टॉपर भी देख रहे हैं बच्चों, मैंने स्पेस छोड़ दिया था, मैंने हेडिंग बाद में लिखा हाउ वन कैन इम्प्रूव वंस इंग्लिश. और
ये सारे इसके आप ध्यान से इसको देखेंगे, टाइम से आप देखेंगे बच्चों। इसमें हेडिंग को अलग सीक्वेंस दी गई है, सब हेडिंग को अलग दी गई है, सब हेडिंग हालांकि कोई बना नहीं है, और इंडेंट भी बच्चों अलग अलग दिए गए। इसकी शेप कुछ इस तरीके से बनेगी और नीचे की टू एब्रीविएशन जो वो इस तरीके से लिखेंगे। सो दिस इज एन आइडियल स्पेसिमेन ऑफ नोट मेकिंग। पैसेज आपको दिखाया, आप पैसेज भी देख सकते हैं और उसके हिसाब से नोट्स इस तरीके से बनने चाहिए। स्टूडेंट्स, दिस वाज नोट मेकिंग पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सॉरी उस चीज़ के लिए कि जो मेरा प्रीवियस वीडियो था बच्चों, ओरिजिनल लिंक से वो डिलीट हो गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैंने रीलोड किया उसी वीडियो को। इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे सबसे पहले उसी वीडियो का मैंने लिंक दिया हुआ है। आप ज़रूर उसको देखेंगे, ज़रूर उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और नेक्स्ट टॉपिक पे किसी नए विषय के साथ फिर से मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।